खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, इसलिए खाने के बाद माफ़ी चाहता हूँ कि क्या कहते हैं खाने के पहले नहीं खिलाया आपको, एक बार और दे देना चाहिए। हाँ सॉरी, या थैंक यू वेरी मच। देन वी ऑल्सो हैव टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस जिससे कि हम एफिशिएंसी बिल्ड करते हैं, कंपटीशन से आगे होने की कोशिश करते हैं, नए तरीके से लोगों को अपने प्रोडक्ट्स टेस्ट कराने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों को खाने के बाद, कुछ लोगों को खाने के पहले। सो दीज आर सम ऑफ द ट्रिक्स दैट वी पिक अप एंड ट्राई टू add a % or 2 growth to our business. Last but not the least, I think a common ground which is there between all of us is the distribution expansion. So here again, I think I was right. This is always a disputed number. People keep talking about it's 1 crore, 1.5 crore. Pepsi keeps talking about 1.5 crore. तो वो बोलते हैं कि outlet base है, and because they don't only consider your food product as the place where they can sell business, they also think here, why not a butchery shop, why not a egg store, why not a STD booth, or why not a pan bida shop. So they look at more opportunities there. Not to be quoted anywhere, but this is how I have read it or heard it in the past. I think it's also important that we always keep evaluating our distribution. Are we going to the right outlet? Are we going through the right way? हम उसको appropriately सर्विस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम उसको सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. As you said that rural is growing and it's going in double digits. That's because over a period of time, most of the organizations have actually realized that wholesale possibly may not be a sustainable challenge, a sustainable route for us to grow. So you will have to continue doing direct distribution. आप villages में चले गए, आपने वहाँ पे distribute करना चालू कर दिया, आपका wholesale जो है वो थोड़ा सा shrink कर गया. I think that is one of the examples. The other important point that I would like to talk about is, a current example of Mondelez. We did not expand in last, I think 2-3 years, Indro? In last 2-3 years, 2013 से 2015 तक हमारा एक्सपेंशन नहीं हुआ, एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ स्ट्रगल्ड फॉर ग्रोथ. और ये अपने खुद के तजुर्बे की बात बता रहा हूँ. आई एम वेरी न्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन. आई हैव जस्ट जॉइंड इन अबाउट अ मंथ बैक. आई वुड हैव कनेक्टेड फ्यू ऑफ यू इन माई प्रीवियस असाइनमेंट. मैं इसके पहले ब्रिटानिया में था, साउथ में और ईस्ट में. अगेन दिस ईयर आई टच वुड से दैट जॉइंड एट अ राइट टाइम, where organization is again focusing on distribution. We are expanding our distribution and have started growing, and I'm thankful to people who have contributed to the first quarter. A round of applause for people. ये quarter हमारा अच्छा रहा है, and I think there is a lot of positivity which I saw in ground. कल मैं प्रफुल्ल भाई के साथ मार्केट कर रहा था. One of the wonderful experiences that I had in my life during my stint in Mondelez, and so this distribution expansion has actually helped us deliver our Q1 numbers. We'll keep building on it and continue to ensure that we sustain distribution. Now to do that, there are always a couple of questions which are there with us. कि अर्बन में करना चाहिए, होलसेल या की अकाउंट से निकालना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम रूरल फुटप्रिंट बढ़ाना चाहिए. सो आई थिंक अगेन एज आई सेड दैट distribution expansion plays an important role, but at the same time we need to ensure that we move through the right way, right channel, and in the right proportion. At the same time, how do we ensure wherever we move in, हम जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे sustainability कैसे manage करें? And for that, organization from our side, I think we keep investing in technology, new processes and ideas. And from your end, I think the distributor fraternity has always cooperated and invested despite their discomforts in salesmen and monetary investments that is required for the business.
maybe I'll keep touching about small examples. If in case there is a lean organization जहाँ पे आपके पास एक या दो प्रोडक्ट हैं, जहाँ पे आपको एक्सपर्टीज चाहिए है, वहाँ मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, you need to have a sales force which is far more capable. क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स कम हैं, आपको ज़्यादा एग्जीक्यूशन लगेगा, वहाँ पे मेहनत ज़्यादा लगेगी, so you will always need much more capable force to run a show which runs a business that runs with a small portfolio. On the contrary, when you have a larger portfolio, you always need a automated business which is more dependent on processes and less dependent, maybe slightly less dependent on people. With that, we move to the next ground. I think there are also some of the responsibilities during this process. Any organization is supposed to ensure that it's there in place. I think for anything, government, the organization is more of a parent. And Patil साहब ने आज सुबह एकदम बिल्कुल सही कहा कि the processes are never wrong. Organizations are always right. The implementation always goes wrong. And at the same time, it's our responsibility that we implement processes in a right way. And I will always take the ownership for that. मैं अपनी तरफ से हमेशा ownership, जब तक यहाँ पे रहूँगा आपका आशीर्वाद चाहूँगा, गलती ना हो, और कोशिश करूँ कि चीज़ें जो हैं वो properly implement हो जाएं. So CRS, claim processing, better implementation of your capability and governance, and a few more things that I can keep talking about are some of the responsibilities that most of the organizations have actually started taking up, and we will continue to do that. I think with that, again, this was more about reiterating the basics that we keep working on, and would like to start this region with this. Thank you very much, and let's hope that we succeed together in the coming year. I think the first quarter has been promising. I would like to join hand with all you guys that we are able to ensure that we find good success in 2017-18. Thank you very much. Yeah, बताएं. सुबह के सेशन में अगर आप होंगे तो राठी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, राम बंधु वालों ने, कि डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकिस्ट और कंपनी का रिलेशन मियाँ बीवी जैसा होता है. आपने सुनी थी वो बात? बिल्कुल सुनी थी. और अभी आपने ट्रस्ट की बात की, विश्वास की, ठीक है. तो मुझे ऐसा लगता है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी की सारी अपेक्षाएँ घरवाली से है, जिसको अपन बीवी बोलते हैं. सारी अपेक्षाएँ आपकी घरवाली से हैं, और आप गिफ्ट ले जाके देते बाहर वाली को, जैसा वॉलमार्ट, रिलायंस. तो आपकी इसके ऊपर राय चाहूँगा. मैं आपको इसका आगे अगर कुछ बोलना भी चाह रहे थे तो मैं आपसे दरख्वास्त करता कि सर मेरे को बोलने दीजिए. हाँ बोलिए ना. मैं वापस उन्हीं दिनों पे जाऊँगा. मेरे एक साहब हुआ करते थे जिनका नाम था प्रकाश अय्यर, और उन्होंने बोला था कि अभी वो मुंबई इंडियंस के मेरे ख्याल से सीईओ हैं, और किताबें लिखते हैं. उन्होंने नौकरी छोड़ दी. उन्होंने बोला कि मेरे को किताबें लिखनी थी, एंड आई वांटेड टू डू व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ. हाँ, इन्फो मीडिया में भी थे. अभी मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस के सीईओ हैं वो, इफ आई एम राइट. एंड एक बार जब आपको याद है पेस्टिसाइड्स का इशू हुआ था और पेप्सी काफ़ी जगह पे बैन हो गया था. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू सेल पेप्सी ड्यूरिंग दैट टाइम. और उसी समय, उसी दौरान हम लोग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से, अगर आपको पता हो तो हम पेप्सी जो था वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा किया करते थे. CFA हुआ करता था, डिपो था, वहाँ से ट्रक डायरेक्ट कंपनी के निकलते थे और वो बेच के आते थे, और वहाँ से हम लोग ने अपना बिजनेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास देना चालू किया था. मैंने अपनी प्रिंसिपल, क्योंकि मैं आपको आज से 10 साल 12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, वो बात मेरे को टच की थी. मैं उसका फॉलोअर हूँ आज भी. मैंने फिर आपसे बोला कि क्या कहते हैं, हो सकता है कि गलती हो जाए हमसे प्रोसेसेस इंप्लीमेंट करने में, और इसीलिए आप लोगों का सबका आशीर्वाद भी चाहा. काफ़ी लोगों से मैं उम्र में कम होऊंगा यहाँ पे.
उन्होंने एक बात कही थी, बोले जब आप शादी करने जाते हो तो आप ऐसा नहीं करते हो कि जहाँ पे गए जो लड़की दिखी शादी की और लेके घर पे आ गया। इट ऑलवेज हैव टू बी अ राइट फिट। और ये आपके लिए कोई बाहर वाली के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये घर वाली के लिए भी एप्लीकेबल है। उस समय में काफ़ी सारे कंपनी के, अगर आप पेप्सी के लोगों को पूछें, वो बोलते थे यार मेरे को पेप्सी ज्वाइन ही नहीं करना है। क्यों? बोले कौन सुबह 7 बजे से काम करना चालू करेगा और रात में 11 बजे तक करता रहेगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग काम करते थे। क्या वो लोग गलत थे या कंपनी गलत थी? तो वो शादी ठीक थी, आपने गलत जगह शादी की और गड़बड़ हो गई। अब वो जो, ये पहली बात, ये मेरा बिलीफ है कि मेरा चैनल पार्टनर कैसा होना चाहिए, मेरे ख्याल से वो राइट फिट होना चाहिए। मेरे परिवार की संस्कृति और सभ्यता के लिए वो राइट फिट होना चाहिए, क्योंकि आदमी वो भी गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूँ। नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा वाला सवाल किया आपने, कल मुझसे किसी ने, कुछ लोगों ने बोला था कि यार आप इस बारे में क्या, पर पहले भी बोला इस बारे में क्यों बात नहीं करते। मैंने बोला सर सवाल ज़्यादा हो जाएंगे, मैं बोल नहीं पाऊँगा। तो आई अंडरस्टैंड, आई थिंक दैट्स अ लार्जर इशू which over a period of time I am sure most of the organizations will be able to address it. आपको अगर पता हो तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑलरेडी वो स्टेप ले लिया है। उन्होंने क्या किया है कि जो कैश एंड कैरी, जो आज की तारीख में बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ जगह पे शायद टीटी को दे दिया है, जो आपके जीटी को दे दिया है कि आप ही लोग हैंडल करें, तो दोनों बच्चे आपके घर में रहेंगे, आप ये नहीं बोल सकते कि क्या कहते हैं इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है। So there are a lot of other steps also which have been taken by multiple organizations. I think it's only a question of time. इस मुल्क ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, गांधी के टाइम पे भी लड़ी हैं और हमने बैटलफील्ड में आज लड़ी हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन में भी आज जो स्टेटस पे हम आके खड़े हुए हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद में आगे बढ़े हैं। मेरे ख्याल से ये इशू ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। आई थिंक इट शुड मोर और लेस अर्लियर गेट रिजॉल्व। बट येस, इफ़ इन केस देर आर स्पेसिफिक्स और कहीं पे आपको लगता है कि हम इंटरवीन कर सकते हैं, मैं भी नया आया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ प्रोसेसेस लगाऊँ जिससे कि उसका हल्ला कम हो। आई विल ट्राई टू डू बेस्ट फ्रॉम माई एंड एंड दैट इज़ व्हाट आई कैन से एट दिस पॉइंट इन टाइम। इंद्रो, वुड यू लाइक टू ऐड ऑन दिस क्वेश्चन? यू विल एड्रेस इट, राइट? एक मिनट, ये कंपनी क्या डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचती है? क्या कंपनी सुपर स्टॉकिस्ट के बारे में सोचती है? मैं 2-3 कंपनियों का काम करता हूं, जिसमें एक वाडेलाल आइसक्रीम है और एक बाग बकरी चाय है। वाडेलाल आइसक्रीम का ये स्थिति होती है कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर को टारगेट देती है 75 लाख रुपए का, और उसके अंदर वो उस टारगेट को अचीव करके 1 करोड़ रुपए पे ले जाती है। वाडेलाल कंपनी एक ऐसी कंपनी मैंने देखी, अगर किसी ने 1 करोड़ का टारगेट कर लिया है तो वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया काट देती है और उसको कहती है कि तुम्हारा ये एरिया कटेगा, वहाँ दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। अब उस डिस्ट्रीब्यूटर की क्या गलती है? गलती उसकी ये है कि उसने सेल कर ली, उसने सेल बढ़ा ली, चलो खैर ये बात भी मान ली, चलो साहब दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, फिर उसको टारगेट दे दिया 80 लाख रुपए का, फिर उसने उसी एरिए में 1.5 करोड़ का टारगेट कर लिया, तो कंपनी के फिर तकलीफ हो गई। मैं मेरे ख्याल से ये इंडिविजुअल नहीं है साहब, मैं ऑल डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहा हूँ। ये जो कंपनी है वो सब डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ऐसा करती है, और डिस्ट्रीब्यूटर एक बनाया, दूसरा चला गया, तीसरा चला गया। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और आपने अच्छा हुआ ये सवाल किया। आप बैठे सर, मैं जवाब देता हूँ। आप ये बताइए, अगर आज मेरा कोई डिस्ट्रीब्यूटर मेरे लिए 1 करोड़ का धंधा करता है और मैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन 5 करोड़ पे लेके चला जाता हूं, वो मेरे लिए 1 करोड़ पे ज्यादा काम करेगा या 5 करोड़ पे मेरे लिए ज्यादा कनेक्टेड रहेगा? वही डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है 5 करोड़ का काम। तो साहब आप ये सोचते हो, बात नहीं समझ, मेरा सवाल नहीं पूछा। मैं बता रहा हूँ आपको, आप ये सोचते हो कि मैं दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊंगा तो वो मेरा 5 करोड़ का सेल ऐसे करेगा कि 3 का ये कर रहा है, 5 का वो करेगा, मेरा 8 करोड़ का टारगेट होगा। आप 5 करोड़ टारगेट को हाईलाइट करते हो। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। कोई आदमी मेरे लिए 1 करोड़ का काम कर रहा है और उस आदमी को मैं बड़ा करके 5 करोड़ का दे देता हूं धंधा,
वो 1 करोड़ वाला आदमी मेरे साथ ज़्यादा मेहनत करेगा, मेरे से ज़्यादा खुश रहेगा, या 5 करोड़ वाला मेरे लिए ज़्यादा मेहनत करेगा और मेरे साथ ज़्यादा खुश रहेगा? तो 5 करोड़ वाला 6 करोड़ आ गया तो नंबर एक ये ज़माना, वो ज़माना जो है ना सर, वो थोड़े समय पहले चलता था। मेरे ख्याल से आज की तारीख में मेरे को जहाँ तक याद है, मैं इंडिया में वापस अभी 3 साल पहले आया हूँ। 3 साल से मेरे को याद नहीं है कि कभी किसी आदमी ने डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ा हो या फिर हमने उनसे जाके बोला हो कि सर आपसे हैंडल नहीं हो रहा है किसी भी वजह से। जो पहली अपॉर्चुनिटी है, वो पहली अपॉर्चुनिटी एज एन प्रिंसिपल, और जो मैंने बाकी लोगों से भी सुना है कि हम उन लोगों को देने की कोशिश करते हैं जो बगल का एरिया कर रहे हैं। अब मैं आपको उसके बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकता हूँ। आज बहुत सारी कंपनियां हैं जो बिलीव करती हैं कि उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स बड़े होने चाहिए। मैं ये कहूँ साहब आपको, आप वो बात कर रहे हैं कि मेरी वाइफ है, दूसरे घर वाले की वाइफ अच्छा काम करिए उसको घर में डाल लें, ये मतलब हुआ इसका? तो ये गलत बात हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं सर, मैं आपसे अलग से भी बात कर लूंगा। शायद क्या कहते हैं, आपका नज़रिया अलग है, मेरा नज़रिया अलग है। अगर कहीं कुछ गलती, थैंक यू वेरी मच। चाय कटिंग मंगाई तो वो आधी है या आधी भरी है या आधा खाली है, और अगर इस पर बहस की जाए तो पुरानी कहावत कही गई है। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, पहले आप में ट्रेन छूट जाती है, कोई चढ़ता नहीं। हम डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स के ये सब मुद्दे पे अगर बात कर रहे हैं तो से अच्छा अपने लोग और एक चीज़ सीख लेते हैं कि ऐसा क्या क्या सिचुएशन होता है जिससे बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। तो मोंडेलिस के ही कंपनी से ही मिस्टर इंद्रनाथ राय, असिस्टेंट डायरेक्टर, इनको इनवाइट करता हूं कि वो आपके इस बिन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें उसके विषय में कुछ प्रकाश डालें।